Hello, my dear banker friends. This is a video on valuation of bond level 2. This is included in the chapter calculation of YTM in JIB syllabus and in the chapter bond investment in CAIIB syllabus. So this video is going to help both JIIB and CAIIB bankers. Before beginning with the level 2 video top material, let me just revise what we studied in video number 1. We had studied relation between market rate and coupon rate. To just give you a revision, par value rupees 1000, par value face value of this bond is rupees 1000. The coupon rate is the interest rate which the bond pays you per annum. It is 6%. Maturity is 3 years, correct? So, and the market rate given is 5%. Market rate is what actually? This is the rate of similar products in the market. It is at present 5%. Fine. So, if you solve this using the formula for present value, how will you solve this present value? I'll use a slate for this. I'll show you one of the calculation. See, present value we need to calculate. The present value of a bond is equal to the cash flow. Now see, look here, 6% on rupees 1000. So 6% on 1000, that is rupees 60. So this rupees 60 I am going to get after 1 year. So 60 divided by into bracket 1, the market rate is 5%. So 1 plus 5%, that is 1.05, correct? 1.05 raised to power 1 plus after 2 years I am going to get again rupees 60. So 60 divided by 1.05 raised to power 2, and in the third year I am going to get 60 rupees and plus 1000 rupees back. So the total amount will be 1060. Are you getting this? 1060 divided by 1.05 raised to power, I'll write here 3 because this I am getting after 3 years. If you solve this on calculators, you will get an answer as 1027, which is written over here. Hope you got this. We studied this in video 1. If someone has still problems with solving such type of calculations, refer video 1 on bond valuation. I have shown the calculator operations in that video. So let us continue further. For this particular case, I got an answer of present value as 1027. Now friends, just focus on the rate. The coupon rate is 6% and market rate is 5%. Market rate is less and coupon rate is more. Okay, so you'll get this answer of present value. It will be always more than 1000. So I got an answer 1027. Now if second case, but the other things remaining same, what I have changed is the market rate. Now if I assume the market rate to be 6%, you can just compare. The coupon rate is also 6, the market rate is also 6. If you solve again with the same formula which I shown just now and calculate the present value, you will get the answer as 1000, which is equal to the face value of the bond. If the market rate, now I assumed it to be 7%, which is more than the coupon. Hope you are getting this, which is more than coupon. So as the market rate is more, coupon rate is less, the value, present value of the bond will be less than 1000 rupees or less than the face value. So we got the answer 973. So this is how it goes when the market rate changes. And friends, this market rate is not fixed. Coupon rate will be always fixed for this 3 years for this particular bond, but market rate will change. So as the market rate changes, it fluctuates, your value of your bond will keep on changing. This was the concept which we studied last video, and I deliberately revised this because this is going to help you in video number 2.
Now let us continue with our fresh video on valuation of bond. Again I have assumed some case over here. Just focus. Face value 1000 rupees. These are the three cases. Coupon rate is 11%, so coupon rate is same in all the three cases. And the required rate, see, required rate you can also call it as market rate. What we did, I'll write here, required rate can also be, I'll write here as market rate. You can call it as market rate. So required rate or market rate is 13%. Okay, now this is 13%, which is same all over. This is problem is different. Market rate is like 13% fixed, coupon is 11%, and face value is 1000. Now what I am doing over here is years to mature, that is assume that this bond is maturity is 5 years. Now in second case the maturity is 4 years, next the maturity is 3. If you could imagine, originally the bond maturity was 5 year. After 1 year the maturity remains 4 years. Again after 1 year the maturity remains is 3 years. So this is residual maturity which is decreasing, correct, as 5 years, 4, 3, 2, and ultimately the bond will mature. Now I need to highlight, or I am highlighting in this particular problem, as the maturity declines. Can you see the maturity is declining? First the maturity period was 5 year, then it was 4 year, then it was 3 years, then it will be 2, 1, 0. So the maturity is declining, and in all the three cases I have calculated the present value. I have shown in this problem, for this particular case number 1, I have calculated the present value. Now just see, this is 11% coupon on 1000 rupees. So what will be your coupon amount? This is percentage. So 1000 rupees पे 11%, that means you are going to get 110 rupees coupon. आपको 110 रुपया मिलेगा 1 साल के बाद में, और ऐसे आपको 5 साल तक 110 रुपये मिलने वाला है, करेक्ट. सो आई हैव रिटन हियर 110 रुपीज़ आफ्टर 1 year. Now I am going to use a formula. I'll write here. If you remember, present value formula is present value is equal to future value upon 1 plus r raised to power 1. This formula I told you in video number 1. This is going to be used n number of times. So don't forget, mark this. This formula is very important. Present value, how by using this formula, what exactly you are doing is you are discounting the cash flow, or you are calculating the present value of future cash flow. देखिए, इसमें ये बॉन्ड में 1 साल बाद आपको 110 रुपये मिल रहा है, तो 110 रुपये की आज की वैल्यू निकालना है. तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा. 110 रुपये डिवाइडेड बाय 1 plus r. But people get confused. This r is not coupon. R is market rate or required rate, which is 13%. So 110 divided by 1.13, okay, plus 110 रुपये ये जो है ये 2 साल के बाद मिलने वाला है. तो 2 साल के बाद वाला 110 रुपये डिवाइडेड बाय 1.13 प्लस 110 रुपये डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू पावर 3. कैन यू सी दिस? Plus 110 divided by 1.13, 1, 2, 3, 4 and 5, because I am going to get 110 rupees coupon 5 years, बरोबर. प्लस आखिरी में आपको 1000 रुपये भी वापस मिलेगा, और वो 5वें साल में ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी 5 साल की है. तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 1.13 raised to 5. If you solve this, I taught you this in video 1. Again I'll show this. See, what you are going to do is, on calculator, 110 divided by 1.13 and press equal to. You got 97. You got over here 97.34, correct? See this. Can you see this? 97.34. Now just press equal to sign again. Okay,
So you will get the answer as second answer, and that is 86.14, correct? If you press equal to sign one more time, you will get 76, and in this way 5 years यहाँ तक के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये वाला आंसर जो है 542, ये अलग से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? Okay, so if you go by this way and calculate all the present, these are all the present value of future cash flow. आपका ये जो आंसर्स है ये प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले पैसों का प्रेजेंट वैल्यू है, करेक्ट? इफ़ यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट आंसर एज 929. दिस इज आंसर फॉर केस नंबर 1, करेक्ट? इन द सेम वे व्हाट आई हैव सॉल्व, इफ़ यू सॉल्व फॉर दिस, सिर्फ चेंज इसमें क्या होगा, सेकेंड केस में यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 बार हमने 5 कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं 110 रुपये के। यहाँ पे आपको 110 रुपये 4 बार मिलेगा और आखिरी में 1000 मिलेगा। और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अगर आंसर निकालो तो ये सेकेंड आंसर आपका आएगा 940 पॉइंट समथिंग। तीसरे केस में आंसर आता है 952। नाउ फ्रेंड्स, इफ़ यू सी as the maturity is reducing और declining, म्हणजे ये बॉन्ड अभी मैच्योर होते जा रहा है तो इसीलिए उसका मैच्योरिटी पीरियड कम हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 929, 940, 952 ये बढ़ रही है, बरोबर? लेकिन आप इसको समझो, ये 1000 रुपीज़ और 929 इसमें जो फ़र्क है इसको बोला जाता है डिस्काउंट। सो 1000 और 929 रुपये इसमें फ़र्क कितना है, तो 71 रुपीज़ का डिस्काउंट ये बॉन्ड पे चल रहा है। ये वाली केस में वो जो डिस्काउंट है वो हो गया 60 रुपये का। यानी इन शॉर्ट मैं अगर इस यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, नीचे एक टाइटल और एक लिखा मैंने, एंड आई विल राइट हियर एज डिस्काउंट। सो हियर द डिस्काउंट वॉज ₹71, here the discount is ₹60, and here the discount is ₹48. So if you can see, as we'll make a formula or make a statement over here, as the maturity declines or the maturity approaches, the discount on the bond will decrease. और होगा क्या कि जिस दिन बॉन्ड ये मैच्योर होगा उसका जो डिस्काउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और वैल्यू 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ये बढ़ते जा रहा है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। मैच्योरिटी कम हो रही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है, म्हणजे डिस्काउंट कम हो रहा है। आर यू गेटिंग? वन मोर टाइम आई विल जस्ट रिपीट द सेंटेंस। As the maturity declines, the present value increases. That means the discount decreases. करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखा है, इसको स्टार मार्क बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस द डिस्काउंट, सी हियर डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस, करेक्ट? लेकिन ये वाली जो केस है, ये कौन सी केस है कि जो बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। ये बॉन्ड डिस्काउंट पर क्यों चल रहा था? बिकॉज इसका जो मार्केट रेट है वो 13 है और कूपन 11 है। कूपन कम है, मार्केट रेट ज़्यादा है, तो बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पर चलेगा, करेक्ट? तो इसीलिए ये डिस्काउंट वाली केस था। लेकिन अगर ये केस रिवर्स हो जाती है, म्हणजे कैसे, कूपन 11 है और मार्केट रेट जो है वो 10% है। मार्केट रेट अगर 10 से आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आंसर्स प्रीमियम वाले मिलेंगे। तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम म्हणजे बॉन्ड का वैल्यू 1000 रुपये के ऊपर आएगा। तो ऐसी केस में जैसे बॉन्ड मैच्योरिटी के पास आता है, एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस, उसके ऊपर का प्रीमियम जो है वो भी कम होता है। म्हणजे इन शॉर्ट, बॉन्ड अगर डिस्काउंट पे चल रहा है तो उसका डिस्काउंट कम होता जाएगा और मैच्योरिटी पे वैल्यू विल बी 1000। अगर बॉन्ड प्रीमियम पे चल रहा है तो जैसे मैच्योरिटी अप्रोच होगा, बॉन्ड का प्रीमियम जो है वो कम होता जाएगा, ऐसा हमने लिखा है। जस्ट मार्क दिस 2 सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड। इसको आप सिर्फ याद मत करो, इसको प्रॉपरली समझ लो, ताकि ये बहुत ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में आंसर करते समय। Banker friends, let us continue further with yield to maturity of bond. इसको YTM करके बोला जाता है। This is one of the very important topic for you people as banker.
कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा टफ है, समझना है अच्छे से, तो मैं ट्राई करता हूँ, विल गो वेरी स्लो. सी, YTM is basically the rate of return earned by an investor who purchases a bond and holds it until maturity. I put it in very simple English. See, एक बॉन्ड है जो आप खरीदी करते हो या जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. कुछ लोग बॉन्ड को खरीदी करना बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है. सो जैसे आपको समझ में आता है, आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और उसको मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है, तो आपको कितना कमाई उसके ऊपर होगा या उसके ऊपर क्या रिटर्न्स आपको मिलेंगे, उसको YTM बोला जाता है, यील्ड टू मैच्योरिटी. फाइन. अब जाके होता क्या है, बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं. तो आप 1000 रुपये का बॉन्ड है तो आप उसको मार्केट में 1000 में तो नहीं खरीदोगे, आप उसको 1020 में लाओगे, कुछ लोग 950 में खरीदेंगे. इट माइट बी एट डिस्काउंट और इट माइट बी एट प्रीमियम. तो आप जो भाव में खरीदी कर रहे हो और उसको मैच्योरिटी तक रख रहे हो. देखो, दो चीज़ें याद रखना, बॉन्ड आपने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में और उसको मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है, उसके पहले उसको बेचा नहीं है या उसमें से पहले पैसा बाहर नहीं निकाला है, तभी जाके ये कंसेप्ट ऑफ YTM वर्क होता है. यील्ड टू मॅच्युरिटी म्हणजे यील्ड, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड अप टू मैच्योरिटी. अगर मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड में से आप पैसा बाहर निकालते हो तो ये जो मेथड है ये वर्क नहीं करेगा. वो जो रिटर्न आप कमाओगे उसको हम YTM नहीं बोलेंगे, उसको हम अलग रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या करंट रेट वगैरह इस तरह से कुछ हम लोग बोल सकते हैं, जो लास्ट वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा है. आपको याद होगा तो बॉन्ड में आपने पैसे लगाया, बरोबर, 1 साल के बाद आपने उसको बेच दिया, करेक्ट, तो आपने एक कूपन भी कमाई किया. तो बॉन्ड के रिटर्न्स कितने आएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल हमने वीडियो नंबर 1 में सॉल्व किया था. मैं आपको चाहिए तो वो एक बार प्रॉब्लम फिर से आपके सामने रखता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम आपको याद आएगा. जस्ट चेक इट आउट. Suppose you buy 6% treasury bond today at a price of 1010.77 and sell it in the next year. देखिए, आपने यहाँ पे 1 साल के बाद ही वो बॉन्ड को 1020 में बेच दिया है. आपने ये बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखा नहीं है. तो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था कि रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस पर से मिलने वाला कूपन जो कि 6% रहेगा और जो आपने खरीदी किया और बेचा इसमें का फ़र्क जो रहेगा उसको आप कैपिटल गेन या गेन बोलते हो, इनकम फ्रॉम प्राइस चेंज. तो ये दोनों मिला के हो जाएगा आपका कमाई और इतना इन्वेस्टमेंट ये रहेगी आपकी लागत. तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है जबकि बॉन्ड आप मैच्योरिटी से पहले बेच देते हो. अभी ये जो केस आप पढ़ रहे हो आज, इसको YTM बोलते हैं. यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको पहले देखना है कि वेदर यू आर होल्डिंग द बॉन्ड अप टू मैच्योरिटी और नॉट. इफ़ यू आर होल्डिंग इट अप टू मैच्योरिटी देन दिस थियरी वर्क्स. ओके, वन मोर explanation for this. YTM is the discount rate which equals the present value of promised cash flow to the current market price. बैंकर फ्रेंड्स, ये थोड़ा समझना डेफिनेशन मुश्किल है, जब तक कि आप उसको एक्चुअली सामने न्यूमेरिकल रख के ये पढ़ते हो तो ही समझ में आएगा. मैं उस आपके लिए एक न्यूमेरिकल सामने रखता हूँ और फिर ये डेफिनेशन पे मैं फिर से आऊँगा. देखिए, यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड दिस. एक बॉन्ड का मैंने एग्जांपल लिया है, पार वैल्यू 1000 है, उसका करंट मार्केट प्राइस 850 है. इसका मतलब क्या कि आप मार्केट में जाके आपने इसको 850 रुपीज़ में ख़रीदी किया है, सही है. तो 1000 का बॉन्ड है फेस वैल्यू का, जो कि आपको 850 में ही आपने लिया. तो एकदम पहला फर्स्ट हैंड समझने वाली बात है कि जो कूपन 8% बॉन्ड आपको देने वाला है ये तो मिलने वाला है, बट आपका ओवरऑल कमाई 8% से ज़्यादा ही रहेगा. क्यों ऐसे? क्योंकि 1000 की चीज़ आप 850 में ही खरीदी कर रहे हो, म्हणजे ऑलरेडी यू आर अर्निंग ओवर हियर, क्योंकि मैच्योरिटी तक आप इसको रखने वाले हो. तो ऑन मैच्योरिटी आपको समझ में आएगा कि 850 की लागत है और मैच्योरिटी पे आपको 1000 रुपये वापस मिलने वाला है. म्हणजे ये तो आपको स्ट्रेट वे 150 रुपये का कमाई इधर होने ही वाला है, करेक्ट. अलॉन्ग विद दैट आपको कूपन भी मिल रहा है जो कि 1000 रुपीज़ पे 8% है.
तो मुझे एक तो नक्की समझ में आ गया कि ये बॉन्ड मैंने मैच्योरिटी तक रखा तो मेरा कमाई विल बी मोर देन 8%। पहला हमारा ऑब्जर्वेशन। उसकी मैच्योरिटी जो है वो 9 साल की दिया है यहाँ पर, दैट इज़ दिस बॉन्ड इज़ फॉर 9 years। नाउ व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न इफ़ इन्वेस्टर होल्ड्स दिस बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी? आई विल जस्ट अंडरलाइन हियर, ये अंटिल मैच्योरिटी। देखो ये बॉन्ड बीच में कोई जाके बेच देता है तो रिटर्न YTM कैलकुलेशन से ये होगा नहीं। यहाँ पे उसने ख़रीदा और मैच्योरिटी तक रखा है। तो अभी देखिए आप कैसे करोगे। ये मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आपको आता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला ये CF म्हणजे कैश फ्लो। तो आपको जो जो इस पर से मिलने वाले कैश फ्लो है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड में आपको कौन से कैश फ्लोज मिलेंगे, तो कूपन पेमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंजिंग से कुछ लिखा है, 8% उसका कूपन है, करेक्ट। तो 8% ऑफ आपको क्या मिलेगा, 8% ऑफ 1000 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। 8% ऑफ 1000 तो 80 रुपीज़ का कूपन आपको हर साल मिलेगा। क्लियर। सो CF1 रहेगा 80 रुपीज़, CF2 रहेगा 80 रुपीज़। ऐसा कितने बार आपको मिलने वाला है, तो फॉर 9 years, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग दिस बॉन्ड विथ यू फॉर 9 years। तो देखिए यहाँ पे 80 रुपये डिवाइडेड बाय 1+R। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि लास्ट वीडियो में हमने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन पढ़ा, करेक्ट। वहाँ पे हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट कर रहे थे, जबकि कूपन और ये मार्केट रेट हमको दिया था। ये प्रॉब्लम में देखिए आपने ये बॉन्ड मार्केट से 850 में ख़रीदा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 850, और मार्केट रेट R, इसको हम मार्केट रेट अब नहीं बोलेंगे, ये R जो है इसके लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, ये लास्ट में 1000 कहाँ से आ गया, तो देखिए 80 यहाँ पे मैंने ये प्लस करके डैश 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 किया, आप इसको रिपीट करते जाना है, और लास्ट में 80/1+R 9⁻⁹, और प्लस आखिरी में 1000 रुपीज़ आपको जो मिलेगा वो डिवाइडेड बाय 1+R⁹9। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूले में अभी R हमको पता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे चलो वेरी सिंपल R कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेंबर्स फ्रेंड्स, ये इजी नहीं है। देखिए ये 1+R⁴ है, ये 1+R² है, इसके बाद 1+R का क्यूब आएगा, ये 1+R⁹9। आपने स्कूल में, अगर आपको स्कूल का पढ़ाई याद है, तो 1+R² इसका फॉर्मूला मुझे आता है, मुझे क्यूब का आता है ⁴⁵ तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा जो कि मैन्युअली सॉल्व होता नहीं है। इसके लिए हमको कंप्यूटर एक्सेल शीट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ एडवांस प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स पे ये सॉल्व होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे PV की जगह पे 850 लिखना है, ये कैश फ्लो लिखना है, R पता नहीं है, और 1000 रुपीज़ ये भी लिखा, और 1+R⁹9 आप। लेकिन अगर परीक्षा में ये एग्जाम्पल आ गया तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स नहीं रहने वाले। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक यहाँ पर समझने वाली बात है। बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिखा है 850, ये वैल्यू 1000 रुपये से कम है, इसीलिए मैं आज रिपीट किया शुरुआत में कुछ फंडामेंटल्स। ये वैल्यू 1000 से कम है, ये प्रेजेंट वैल्यू 1000 से कम कब रहता है, जब ये जो नीचे वाला R है वो कूपन रेट से ज़्यादा रहेगा। कूपन रेट कितना है फ्रेंड्स, 8%। तो समझने वाली बात है कि नीचे वाला R 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ परसेंटेज रहेगा, करेक्ट। तो मैं क्या किया, यहाँ एज्यूम किया कि लेट R बी 12% एंड सॉल्व RHS म्हणजे ये इधर वाला राइट हैंड साइड। अब क्या करना है, ये 850 को ये इसको भूल जाओ, ये ध्यान मत दो। ये वाले फॉर्मूले में आप यहाँ पर R की जगह पर 12% पुटअप करो, करेक्ट। और आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू 787। लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, वी वांट 850 एज प्रेजेंट वैल्यू, बट इट इज़ 787 व्हाट वी गॉट व्हेन R इज़ 12%। तो हमको इसको बढ़ाना है। आप समझिए, आप मैथ्स सिंपल, ये इधर मेरा आंसर आ रहा था 787,
इसको मुझे बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर में जो आर है उसको कम करना पड़ेगा। तो मैं 12 एज्यूम किया, तो सेकेंड बार मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आर को 10% एज्यूम करता हूँ और फिर से ऐसे ही ये 850 को भूल जाना है। और इधर वाला राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू 884 मिला, जो कि 850 से बड़ा है। अब एक अगर मैं इसका एक चार्ट बनाता हूँ तो देखिए, जब आर मैंने 12% एज्यूम किया तो मेरा आंसर 787 आया। जब मैंने उसको कम कर दिया क्योंकि ये वैल्यू मुझे बढ़ाना था, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, याद रखो, तो आर बार 12 था तो 787 आंसर आया। आर 10% म्हणजे कम कर दिया तो ये आंसर बढ़ गया। लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 850 है, क्योंकि बॉन्ड हमने 850 में ख़रीदी किया है। तो हमारा आंसर ये दोनों के बीच में कहीं तो भी रहेगा। तो इस तरह से आपको ये डेटा पहले एज्यूम करके कुछ सॉल्व करके कलेक्ट करना है। फिर इंटरपोलेशन फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो कैसे होता है देखो, द रेट, यहाँ का आर कैलकुलेशंस हमको करना है। तो ये आर इज़ इक्वल टू यहाँ रहेगा, देखिए 10 कहाँ से, ये लोअर मोस्ट वैल्यू, सो 10 प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 10, तो यहाँ लिखा मैंने 12 माइनस 10, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखिए 884, इधर आप 884 माइनस 850, देखिए ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 884 माइनस 787, करेक्ट, यू आर गेटिंग। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये 10 प्लस ब्रैकेट डालते नहीं है और डायरेक्ट 10 प्लस 12 माइनस 10 यानी 2 आता है, तो ये दोनों मिला के 12 हो जाएगा। आपने स्कूल में बोर्ड मास सिस्टम पढ़ा है, बोर्ड मास के हिसाब से ये 10 को पहले छेड़ना नहीं है, उसको वैसे ही रखना है। इसका आंसर आएगा 2, यहाँ लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, इसके आंसर्स आएंगे वो लिखो। पहले इधर वाले नंबर्स को सॉल्व करना है, ये आ गया 0.71, आखिरी में जाके उसको 10 में ऐड करो तो आंसर आएगा 10.71। और ये जो आंसर है इसका मतलब यहाँ का जो आंसर है ये है 10.71%। होप यू गॉट दिस। कैसे किया हमने, ट्रायल एंड एरर मेथड से, बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। देखिए ये होता है, ये प्रॉब्लम अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच यू कैन कैलकुलेट YTM बाय ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे R का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था, जबकि मार्केट वैल्यू उसका दिया है बॉन्ड का, और R कैलकुलेट करना है। एक ऐसा R हमने ढूंढ के निकाला जो यहाँ पे पुटअप किया, तो ये बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू उसके मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगी। फिर से एक बार देखिए, हमने आर ऐसा ढूंढा है जो कि हमारा आंसर आया 10.71। अगर ये फॉर्मूले में ये 850 को भूल जाओ, यहाँ पे 10.71% आपने पुटअप किया और इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर 850 आएगा, जो कि मार्केट प्राइस के बराबर रहेगा। यही चीज़ ये डेफिनेशन में लिखी है, और इसीलिए मैं आपको पहले न्यूमेरिकल हाईलाइट किया। जस्ट चेक दिस, इन द सेकेंड डेफिनेशन द YTM इज़ व्हाट, इट इज़ द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट म्हणजे जो आर हमने कैलकुलेट किया, सो YTM इज़ दैट डिस्काउंट रेट विच इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देखो हमने 10.71 आंसर निकाला, उससे जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कैश फ्लोज का, तो वो शुड बी इक्वल टू कैश फ्लो टू करंट मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है। 10 YTM एक ऐसा रेट है जिससे आप अगर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसको ऐड करोगे तो वो मार्केट प्राइस या परचेस प्राइस के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे आर को YTM बोला जाता है। होप फ्रेंड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज़ बेसिकली YTM। और ये जो न्यूमेरिकल अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जस्ट अ सेक, ये न्यूमेरिकल, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये वैल्यूज़ दिया था 1850, 8% वॉस कूपन, ये मार्केट प्राइस है, और यहाँ पर हमको YTM कैलकुलेट करना है। बिफोर दैट चेक कि वो मैच्योरिटी तक आपने रखना है, और ये उसका प्रोसेस पढ़ाया। तो ये जो आंसर आता है इसको बोला जाता है YTM। एक बार लास्ट, YTM क्या है, तो YTM एक ऐसा रेट है कि जिससे बॉन्ड से मिलने वाले कैश फ्लो का अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो वो उसके मार्केट प्राइस के बराबर आंसर आएगा। उस आर को YTM बोला जाता है। होप यू गॉट दिस।
ये टॉपिक थोड़ा टफ था। ये YTM जो हमने आज पढ़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आपको अगर आता है तो जस्ट गिव मी अ कॉल और सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। माय फ़ोन नंबर इज़ 9422193395। मैं अभी यहाँ पर रोकता हूँ, और लेवल 3 वीडियो बॉन्ड का कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। एट प्रेजेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।